a good morning once again to all those who have joined and who will be watching this henceforth. So we had a very wonderful, inspiring session by Dr. Arvind Kasturi, and it is now time to introduce to you yet another Mr. Arvind AK, certified personal trainer and certified nutritionist. That's a rare combo and something to be cherished for our platform. Our heartiest welcome to you, Mr. Arvind. You are an FMPT, ASPT, and ACSM sport injury rehabilitation expert, IFPA certified sports nutritionist. Kinesiology is your expertise, and you deliver high energy training sessions. You deliver fitness, weight loss, and nutrition programs for all ages, and including menopausal women. I wanted to bring that in. And that is where it is most challenging, I bet. And then body transformation specialist, adept in helping diverse populations achieve their fitness, weight loss, and conditioning goals. So I think you do a lot of hand holding and follow up for your clients or trainees, as you may be calling them, and you take them through that part of their life when they are almost like a physical rehabilitation. That's wonderful. You're doing a wonderful job. Currently running your own business, of course, AK Fitness Buddy. And you will tell us more about that, where it is stationed and all. And you do also provide home personal training for yoga, self-defense, functional training, muscle gaining, and fat loss. And I'm sure that you are also part of neuro rehabilitation programs for patients with minor stroke, etc., because I feel that is another area which is not very well, or post-trauma rehabilitation patients. So these are wonderful, job profiles to go through, and the floor is not all yours now to show us your expertise. Thank you so much. Yeah, and Arvind will be speaking on, he will be giving us a demo on leg workout with and without weights. Okay. Sure. Thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. And good morning. So, as like आप सभी को पता ही है कि I'm just providing a fitness training and nutrition diet plan and all. So right now, as Dr. Chawla, उन्होंने मुझे बताया कि I have just give a demo for a legs workout, and I have to tell to people कि what is the benefit of legs workout and how to do it correctly, right? So let's start with the legs workout. So Sandeep, wait, yeah. So firstly, we'll start with the basic. Firstly, we'll start with the basic, and we'll start. Just wait, I have to place my camera. Sleep, come here. Am I audible or visible? Sleep, come. Front side. Okay. So side profile. So basic mostly जो हमारा main common रहता है वो mostly रहता है कि जब भी squats perform करते हैं हम, basic exercise है legs की squats जब भी I'm not talking about कि किसी को कोई injury से निकला है या फिर किसी से basic जो general fitness कर रहा है वो सबसे basic exercise करते हैं squats. So squats में 90% लोग गलत करते हैं, 90% लोग squats में. So इस चीज को इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम squats करते हैं तो मोस्टली लोगों का जो नी है वो आपके टो से आगे चला जाता है. सो जब भी आपको स्क्वाट्स करना है, स्क्वाट्स करो डाउन. तो स्क्वाट्स करते हुए मेक श्योर तो आपको 90 डिग्री एंगल के आसपास ये रहे, 120 to 90, और जो आपका नी है ये आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए. मेक श्योर आपका टो से आपके आगे नहीं जाना चाहिए. तो जब भी स्क्वाट्स परफॉर्म करना है तो आपको अपने क्वाड्स के मसल्स को ट्रेन करना है. तो ट्रेन योर क्वाड मसल. आपको पटेला के मसल्स पर प्रेशर नहीं डालना है. सो पटेला के मसल्स पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, तो आपको अपने नी को आपके टो से पीछे ही रखना है. इसके लिए आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, और मेक श्योर ये डाउनवर्ड, जितना डाउनवर्ड रहेगा उतना अच्छा रहेगा, 90 डिग्री के आसपास रहे. और जब भी हमको कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, लेग्स का स्क्वाट्स करना है, लंजेस करना है, व्हाटएवर यू वांट टू परफॉर्म, मेक श्योर कि उस रेपिटेशंस को हम काउंट करें. एक रैप करते हुए हम 5 सेकंड का टाइम ले. 1 2 3 4 5 सेकंड. इससे क्या होगा कि जो आपके मसल्स हैं वो अच्छे से एक्टिव होंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे.
मोस्टली लोग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं 1 2 3, उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक क्लिक करो, स्क्वाट्स करो फास्ट 1 2। तो अभी जब फास्ट, जब भी कोई वर्कआउट आप करोगे, फास्ट रिपीटिशंस करोगे, तो आप पूरे मसल्स, आपके सपोर्टिंग मसल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं डालोगे, सिर्फ आपके अपने स्लो ट्विच मसल्स पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। फास्ट ट्विच मसल्स जो आपके होते हैं, जो कि आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं, उस पर आपका इतना प्रेशर नहीं आएगा। सो जब भी आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, तो आपको इस मूवमेंट को, इस रेपिटेशंस को स्लो करना है एज यू कैन डू, जितना भी स्लो आप कर सको, जितना भी। मेक श्योर कि 6 सेकेंड, तो एटलीस्ट टेक योर टाइम 6 सेकेंड्स कि डाउनवर्ड जो आपका मूवमेंट है, एसेंट्रिक कंसेंट्रिक मूवमेंट है, उसमें 6 सेकेंड्स का एक रेपिटेशन होना चाहिए। तो जब भी आपका मसल कंट्रैक्शन में आए, डाउन जाए, अप जाए, जो भी मूवमेंट आप करो, तो उसमें आप 6 सेकेंड्स का टाइम लो, ठीक है। थैंक यू। सो सेकंड जो मेरा मेन रहता है कि लेग्स, मोस्टली जिम में लोग जाते हैं, घर जाते हैं, कोई भी वर्कआउट, सभी अवॉइड करते हैं, लेग्स का वर्कआउट नहीं करना है। लेग्स का वर्कआउट नहीं करना, अपर बॉडी कर लेते हैं, आर्म्स कर लेते हैं, आर्म्स को टोन करना है, ट्राइसेप्स को टोन करना है ना, बेली फैट चला जाए, है ना। लेग्स तो हम वॉक कर ही लेंगे, है ना। बहुत से लोग ये बोलता है कि हम लेग्स का वर्कआउट तो कर ही लेंगे, वॉक कर लिए, लेग्स का वर्कआउट हो गया। ऑल तो ठीक है, लेग्स का वर्कआउट हो गया वॉक से, बट आप जब वॉक करते हो, तो आपकी जो बॉडी होती है वो एक एरोबिक स्टेट में होती है। कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स डाल रहे हो, कंटिन्यूटी में 5 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वॉक कर रहे हो। बट अबाउट एनारोबिक, जहां पर आपके मसल्स को आपको तोड़ना है और उनको बिल्ड करना है। सो एनारोबिक में जब आप जाओगे, तो आप फास्ट ट्विच मसल्स को हिट करोगे, जिससे आपको स्ट्रेंथ गेन होगा। स्ट्रेंथ गेन होगा तो आपके नी जॉइंट, आपके हिप जॉइंट, सारे जॉइंट आपको एक अच्छी ग्रिप देंगे, जिससे आपको स्ट्रेंथ से आपको बेनिफिट मिलेगा। सो मेक श्योर वॉक इज गुड, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको राइट वे में, राइट टेक्निक से वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। सो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्क्वाट्स। सो स्क्वाट्स में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है। इस तरफ आ जाइए, सामने से। ओके, सो स्क्वाट्स करते हुए मेक श्योर कि जो आपके शोल्डर लेवल तक आप अपने लेग्स को उतना ही वाइड करो फर्स्ट स्क्वाट्स में, एंड डाउनवर्ड जाओ, डाउन, स्लो डाउन, डाउन 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 डाउन, यस, एंड होल्ड फॉर 2 seconds, and then up, slow up, up, down. This is called standard squats. Okay, so standard squats में क्या होता है, आपके शोल्डर लेवल तक आपका लेग्स वाइड रहेगा, इसमें आपका शोल्डर लेवल तक वाइड रहेगा। मेक श्योर आपका नी आपका टो से आगे नहीं जाए, और ये आपका स्टैंडर्ड स्क्वाट्स है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि नी आगे जाना नहीं चाहिए टो से, दैट विल इंपैक्ट योर नी मसल्स। ओके, सो आपको नी के मसल पटेला पर, आसपास के मसल्स पर प्रेशर नहीं डालना, उनको ट्रेन करना है, ओवर प्रेशर नहीं डालना है। सेकंड हमारा आ गया सुमो स्क्वाट्स, जो कि आपके इनर थाइस के मसल, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स के मसल जिसमें आपके इन्वॉल्व रहेंगे। सो सुमो स्क्वाट्स में आपका जो है ये नी आउटसाइड जाएगा, बाहर की तरफ मूवमेंट रहेगा। इसमें भी आपका नी आपके टो से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको डाउनवर्ड मूवमेंट करना है, आपके इनर थाई पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, पूरा। जब आप अपवर्ड जाओगे तो फुल कंट्रैक्शन आना चाहिए। इट्स कॉल्ड सुमो स्क्वाट्स। स्लो मूवमेंट करना है, होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, नाउ विल लास्ट प्रिजनर स्क्वाट्स। सो इसमें आपको अपने लेग्स को जोड़ लेना है, दोनों को। सो ये थोड़ा सा मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशनिंग है स्क्वाट्स के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो ऑलरेडी फिटनेस में काफी टाइम से इन्वॉल्व और जिसको कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले अपने बेसिक मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रिजन स्क्वाट्स कर सकते हो। प्रिजन स्क्वाट्स से नाम ही पता लग रहा है, प्रिजनर्स वाली पनिशमेंट। सो आपको हाथ को सिर के पीछे रखना है, यहाँ पे दोनों लेग्स को जोड़ना है जितना जोड़ सकते हो, एंड डाउन जितना जाना है, जितना जा सकते हो जाना है। ओके, सो स्पेशली आपके आसपास इंटीरियर क्वाड्स, जो आपके क्वाड्स के मसल, और आपके स्पेशली जो नी के सपोर्टिंग मसल्स हैं, उनको आपको काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ उनके लिए ही है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बेसिक से इसको स्टार्ट नहीं करना है। सो ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, बट ये इसको बहुत इफेक्टिव है आपके सारे लेग के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। ओके, हमने इंटीरियर साइड कर लिया, अब हम पोस्टीरियर साइड करेंगे। सो पोस्टीरियर साइड में हमारा हैमस्ट्रिंग के मसल्स को ट्रेन करना है, ग्लूट्स के मसल्स को ट्रेन करना है, क्योंकि आपके आप इंटीरियर साइड के मसल्स को ट्रेन कर ले। मोस्टली, हाँ, मोस्टली क्या होता है कि जब किसी का, मोस्टली जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी तक, जो मोस्टली लोग नी की सर्जरी हुआ, किसी को कुछ हुआ, तो नी की सर्जरी के बाद वो ट्रेन करते हैं सिर्फ क्वाड्स के मसल्स के आसपास को, क्वाड्स के मसल को ट्रेन कर लिया उन्होंने कि हाँ भाई हमारा नी का सर्जरी हुआ, अच्छा ग्रिप मिल जाएगा।
बट वो हैम्स के मसल्स को ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से उनके क्वाड्स ज्यादा स्टिफ हो गए और हैम्स के मसल इतने ट्रेन नहीं हो पाए, जो कि ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको लेग कर्ल की मूवमेंट में डिफिकल्टी होने स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट एक्सटेंशन अच्छा हो रहा है, फ्लेक्शन नहीं अच्छा हो रहा है। सो मेक श्योर जब भी आप क्वाड्स के मसल्स को ट्रेन करो, साथ के साथ आप उसके ऑपोजिट मसल्स हैमस्ट्रिंग के मसल्स को भी ट्रेन करना है। सो अभी मैं आपको हैमस्ट्रिंग की मसल्स की बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, स्टिफ लेग भी बोलते हैं। सो इधर आइए, साइड पोजीशन में, साइड एंगल से। सो आपको करना है क्या है, बॉडी को पहले स्ट्रेट खड़े होना है, बिल्कुल सीधा, और आपको लेग्स को स्टिफ करना है। लेग्स को स्टिफ करने है, सिर्फ आपको इस लाइन से हिप्स को पीछे लेके जाना, बॉडी को आगे नहीं लेके जाना। जब आप हिप्स को पीछे लेके जाओगे तो आपका हैंड्स के पूरे मसल्स में प्रेशर आएगा, खींचेंगे वो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पीछे तक जाइए, खींचिए ये, हाँ। सो आपको इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग, इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग। सो आप इसको अगर नहीं कर पा रहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्पाइन पे पीछे हाथ रखा, हिप्स को पीछे लेके गए एंड देन हिप्स को आगे लेके आए। सो यू आर यूजिंग योर ग्लूट्स मसल एंड हैमस्ट्रिंग्स। परफॉर्म करो एक बार, लेग्स को थोड़ा वाइड करो, लेग्स को थोड़ा सा वाइड, नी को बेंड थोड़ा स्टिफ करना है। ओके, सो अगेन लेग्स के सभी मसल्स को उतना ही ट्रेन करना जरूरी है जितना हमारे क्वाड्स को ट्रेन करना है, उतना ही ग्लूट्स के मसल्स को ट्रेन करना है, उतना ही हैम्स के मसल्स को ट्रेन करना है, उतना ही हमको ट्रेन करना है आपके काफ के मसल्स को। सो अगर आप काफ के मसल्स को कर रहे हो, शिन के मसल्स को नहीं कर रहे हो, और सिर्फ क्वाड्स के कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग के नहीं कर रहे हो, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो आपको इनफैक्ट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप जब भी लेग्स या कोई भी बॉडी, इनफैक्ट पूरी बॉडी को ही मसल को सभी को ट्रेन करना ही जरूरी है, बट एक मसल को पर्टिकुलर ट्रेन करते रहना आपको इंजरी की तरफ लेके जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेन करो तो सारे बॉडी वर्कआउट ही करो। अगर हाँ कोई फिटनेस प्रोफेशनल हो, कोई एथलीट हो, आपको कुछ स्पेसिफाई करना है कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, तो वो अलग केस हो गया। अदरवाइज आपको फिटनेस में पूरे बॉडी मसल्स को ट्रेन करना चाहिए। सो अभी हमने आपको बता दिया क्वाड्स के, हैमस्ट्रिंग के। सो नाउ आई टेल यू द ग्लूट्स वर्कआउट। सो ग्लूट्स के वर्कआउट के लिए आपको सबसे बड़ा है, ले लीजिए इसमें प्लेस करना है। तो ग्लूट्स के मसल के लिए आपको करना क्या है, आपको लेग्स को फोल्ड करना है, लेग्स को वाइड करना है, एटलीस्ट नॉर्मल जितना आपका लेग्स वाइड रह सकते हैं इसको, और हिप्स को कंट्रैक्ट करना है मसल्स को, देन डाउन, स्लो डाउन, देन अप, देन स्लो डाउन, अप एंड होल्ड, होल्ड एंड स्लो डाउन। मेक श्योर जब भी आप इसको करते हो तो इसके करते समय आपको जो कोर है मसल्स को ही टाइट ही रखना है, लोअर एब्डोमेन के मसल्स को आपको टाइट रखना है, ताकि आपके कोर की भी स्ट्रेंथनिंग साथ के साथ हो जाए। सो ये हो गया आपका हिप रेज। ओके, सो एक ग्लूट्स की एक्सरसाइज और आपको बताने वाला हूं, दैट इज बैक किक। करके हम क्वेश्चन ओके। सो फर्स्टली कोई भी आपको जो एक्सरसाइज करने उससे पहले वो कैट कैमल ही बहुत जरूरी है। लेग्स का कोई भी वर्कआउट करना, अपने स्पाइन की मोबिलिटी को आपको बहुत जरूरी करना है। तो सबसे पहले वो कैट कैमल करना है। कोई भी इनफैक्ट जब भी आपको स्क्वाट्स करना है, लंजेस करना है, सुमो स्क्वाट्स करना है, कोई भी वर्कआउट आपको लेग्स का करना है, तो उससे पहले आप मेक श्योर भी कैट कैमल के यानी आपके बैक के जो मसल्स हैं, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से परफॉर्म करें 10 to 15 टाइम्स। थ्री सेट्स आप कर सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशंस के। सो जब इसको पूरा स्पाइन को और ऊपर लेके आओ, ये पूरा स्ट्रेच करना है, आपके मसल्स जो आपके ग्लूट्स लेग्स के मसल से जुड़े हैं वो पूरे खुल जाएंगे, स्ट्रेचिंग, देन डाउन, देन अप। ओके, सो कैट कैमल आपको सबसे पहले करना है कोई भी लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद अब आपको बैक किक करना है, तो स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ना ही आपके एक्सटेंशन में जानी चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन में, ना ही हाइपर फ्लेक्शन में, उसको स्ट्रेट रखना है। सो इसके साथ आपको करना है बैक किक ग्लूट्स के मैक्सिमस मसल्स के लिए। चलिए, ये स्लो डाउन, होल्ड अप एंड होल्ड, होल्ड फॉर अ सेकंड, देन स्लो डाउन, फोल्ड इट हियर। टेंशन नहीं खत्म करना है। कोई भी वर्कआउट आप, कोई भी लेग्स का स्क्वाट्स, लंजेस,
सुमो स्क्वाट्स कोई भी आप परफॉर्म करोगे तो मसल्स पे टेंशन खत्म नहीं होना चाहिए और टेंशन रिटेन रहना चाहिए, तभी आपका मसल ब्रेक होगा, तभी आपका मसल बनेगा। सो जब भी आप वर्कआउट करते हो लेग्स का कोई भी बॉडी पार्ट का, तो उस पर टेंशन मेंटेन रखना है। होल्ड एंड स्लो डाउन। जब डाउनवर्ड मूवमेंट में आ गए हो आप, सेंट्रिक मूवमेंट में आ गए हो, तो आपने इसको टेंशन में रखना है, लूज नहीं छोड़ना, इसको टेंशन में ही रखना है। देन अप एंड देन डाउन। ओके, सो अभी हम एक मोस्टली लेग्स के वर्कआउट हम कर चुके हैं। अब हम काफ के मसल्स और अब जो हम करेंगे क्वाड्रिसेप्स के ही है, लंजेस करेंगे। सो काफ के मसल्स के लिए सिर्फ फेस करिए, आगे हो जाए, आगे हो जाए, थोड़ा वाइड कर लेग्स को। ओके, सो काफ के मसल्स को नी को लॉक करके नहीं करना, हल्का सा नी को स्लाइड बेंड, लेग्स को स्टिफ, एंड काफ के मसल पे मैक्सिमम प्रेशर आ सके तो काफ रेज करना, ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर। आप वॉल का सपोर्ट या किसी भी चीज के सपोर्ट के, सो यू कैन परफॉर्म दिस। सो मेक श्योर इसको होल्ड फॉर 2 to 3 seconds, 4 seconds, देन डाउन। डाउन आना तो आपको मेक श्योर टच नहीं करना, नीचे हील को टच नहीं करना, टच नहीं करना, देन अप 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 अप, टेंशन, देन डाउन डाउन, होल्ड होल्ड होल्ड। सो टच नहीं करना है, मसल्स पे प्रेशर क्रिएट करना है। 15-20 जितने रैप आप कर सकते हो कीजिए। जब आपका परफॉर्मेंस, आपका रेपिटेशन अच्छा हो जाए, 15 रेपिटेशन आप इजीली कर पा रहे हो, देन वी कैन ऐड रेजिस्टेंस, वी कैन ऐड बैंड्स, वी कैन ऐड वेट्स। सो performing exercise and technique will be same. For a more resistance we can add weights and resistance band. So one more, मोस्टली लोग स्क्वाट्स गलत करते हैं, एंड सेकेंडली लोग लंजेस भी बहुत गलत करते हैं। लंजेस की जो परफॉर्मेंस रहती है, जो करने का तरीका रहता है, जो टेक्निक रहता है, वो बहुत गलत होता है। सो मैं आपको लंजेस का भी सेम बताने वाला हूँ, आ जाइए सामने। ओके, सो लंजेस इज लाइक अ सिंगल लेग स्क्वाट्स। लंजेस लाइक अ सिंगल लेग स्क्वाट्स। मोस्टली लोग लंजेस करते हुए पीछे वाले लेग पे प्रेशर डालते हैं। लंजेस करो, पैर एडी उठाओ। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सारा प्रेशर जो आपके पीछे वाला लेग उस पर डालते हैं। लंजेस का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको पीछे वाले लेग से सपोर्ट लेना है। लंजेस का मेन मोटिव है कि पीछे वाले लेग फॉर योर सपोर्ट, नॉट फॉर अ फुल सपोर्ट। सारा वेट आपका क्वाड्स पे आना चाहिए। जब भी आप लंजेस करोगे, क्वाड के मसल, आपके ग्लूट्स के मसल, सारे सारे मसल्स पे आपको प्रेशर आना चाहिए। डाउनवर्ड जाओ, डाउन। और सेकंड, आपको जब भी आप लंजेस करते हो तो आपका नी आपके टो से आगे नहीं आना चाहिए। डाउन, डोंट टेक सपोर्ट, डाउन, होल्ड, यस। सो ये आपका मेक श्योर 90 डिग्री पर ही, जितना आगे आएगा, जितना आगे ट्रेवल करेगा, इट विल इम्पैक्ट योर पटेला, लाइक आपके पटेला के आसपास के टेंडन्स पे इम्पैक्ट डालेगा। सो मेक श्योर आपको आसपास के टेंडन्स और क्वाड्स को स्ट्रेंथ करना है, तो इसकी मूवमेंट टो से आगे मत लेके आइएगा। जितना आप टो से आगे लेके आओगे उसमें इम्पैक्ट आएगा। जब आपकी स्ट्रेंथनिंग हो गई तो अगर आप भी आ जाए तो फर्क नहीं है, बट उससे पहले जब आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, उससे पहले आपको उसको आगे नहीं लेके आना है। ओके, लास्ट एक्सरसाइज वांट टू टेल यू कि आपको जो करना है, कोई भी एक्सरसाइज करना, अगर आपको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रेपिटेशंस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मूवमेंट खराब हो रहा है, तो मेक श्योर उस एक्सरसाइज का जो बेसिक लाइक स्क्वाट्स है, हम स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स के मूवमेंट सही नहीं हो पा रहा, लग रहा है स्क्वाट्स नहीं हो पाएंगे, तो उसमें आप आपकी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसको, उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप स्क्वाट्स कर रहे हो, सो आप स्क्वाट्स कर पा रहे हो, आपको लग रहा है स्क्वाट्स में कोई फील नहीं आ रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो इसमें आपको आइसोमेट्रिक होल्ड देना है। इसमें आपको डाउन जाना एंड होल्ड फॉर 10-20 सेकंड्स, डाउन एंड होल्ड फॉर 10-20 सेकंड्स। मेक श्योर कि आपके इससे सारे मसल्स एक्टिव हो जाएंगे और सारा इम्पैक्ट आपके मसल जिस पर आप डालना चाह रहे हो उस पर आपको इम्पैक्ट फील होगा। देन आप ओके, सो आप इसको 20 सेकंड, 30 सेकंड्स, कोई भी एक्सरसाइज, स्क्वाट्स हो गया एंड देन लंजेस हो गए, सुमो स्क्वाट्स हो गए, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो टू बूस्ट योर स्ट्रेंथ। एंड जो लास्ट जो मैं आपको एक और बताना चाहूंगा इसके बारे में, लेक्सी वर्कआउट के बारे में, मोस्टली सबसे बड़ा जो गलती जो मैं बताता हूँ जो कर रहे हैं लोग लेग्स के वर्कआउट को लेके, वो वेट लिफ्टिंग में कर रहे हैं। ज्यादातर मैं देखता हूँ इंजरीज होती है, लोअर बैक की इंजरीज होगी स्क्वाट्स करते हुए एंड डेडलिफ्ट करते हुए।
डेडलिफ्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, बट सबसे वर्स्ट भी है, क्योंकि उसको सही टेक्निक के साथ परफॉर्म ना किया जाए तो सबसे वर्स्ट है। अगर सबसे सही टेक्निक के साथ परफॉर्म किया तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सो डेडलिफ्ट का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ, सामने कर दीजिए। सो डेडलिफ्ट में आपको दो टाइप की डेडलिफ्ट होते हैं, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट। सो आपको क्या करना है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करना है तो आपको वही शोल्डर लेवल से थोड़ा सा आपको तकरीबन लेग्स को वाइड करना है शोल्डर लेवल से, राइट। और इसमें आपको स्क्वाट पोजीशन में डाउन जाना है, स्क्वाट पोजीशन डाउन, आर्म स्ट्रेट, लेग लिफ्टिंग योर वेट, सो डेडलिफ्ट करते हुए पकड़ो, स्ट्रेट रखना है आपको, यहाँ पर आर्म्स को स्ट्रेट रखना, डाउन 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 डाउन। ओके, मोस्टली लोग डेडलिफ्ट में क्या करते हैं कि अपने स्पाइन को पूरा बेंड कर लेते हैं, ऐसे वो कर लेते हैं ऐसे, ये स्पाइन को कर्व ले आए, वो नहीं है, इससे आपके वर्टिब्रस पर टेंशन क्रिएट कर रहे हो, जिससे उनको खींच रहे हो, वर्टिब्रस को प्रेशर डाल रहे हो। तो साइड व्यू दिखाओ, डाउन 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 डाउन, नीचे। सो डेडलिफ्ट करते हुए मेक श्योर आपकी स्पाइन है जो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ लोग मोस्टली जो लोग कर रहे हैं वो ये करते हैं, वो अपनी स्पाइन पे सारा वेट डाल देते हैं। अब अगर आप 50 किलो से वेट स्पाइन पर डाल रहे हो ना आपके लेग्स पर, तो ऑब्वियसली इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मेक श्योर डेडलिफ्ट करते हुए आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को जो सर्वाइकल का जो पार्ट है उसको भी डाउन नहीं करना, उसको भी स्ट्रेट रखना है, ऊपर नहीं उठाना है ना नीचे लेके जाना है, स्ट्रेट जो नेचुरल रहेगा उसको रखना है। आपके जो नी है वो आपके टो से आगे नहीं जाएगा, सारा वेट आपके हैम्स, ग्लूट्स और लोअर बैक। और जब डेडलिफ्ट कंप्लीट करना है, जाइए, जब भी आप उसको कंप्लीट करते हो, ऊपर आते हुए आपको पूरा पुश करना है बॉडी को, हिप्स को स्क्वीज करना है, इसको लोअर एब्डोमेन को स्क्वीज करना है, like this। ये गए, एंड देन कम अप एंड अप। ये थोड़ा सा हाइपर में जाएगा आपका बैक, ताकि ग्लूट्स को स्क्वीज कर सको, लोअर एब्डोमेन की मसल्स को इम्पैक्ट कर सको। यस मैम, थैंक यू, सॉरी, आई एम ऑडिबल मैम? Yes, you are, Arvind. That was wonderful demonstration, and I'm sure women have really benefited. हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आपने काफी डिटेल में समझाया है, और हमारी जो मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं, उनमें बहुत ऐसे हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, पेन हो सकता है नी जॉइंट में, एंड उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत रेकमेंडेड है। बहुत स्ट्रांगली ये कहते हैं कि हमको वेट लिफ्ट्स करना चाहिए। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि आप 55-60 से ऊपर की महिलाओं को जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप कितना वेट रेकमेंड करते हैं कि हम कितना ले मैं सकते आपको हैं? समझाना चाह रहा हूँ कि लाइक जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो फर्स्ट वेट लिफ्टिंग से पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, राइट। वेट लिफ्टिंग से पहले आप अपने एक्सरसाइज में आपको आइसोमेट्रिक होल्ड दो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लाइक आपको मसल को मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट उसमें प्रेशर, आपको पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस फील हो रहा है। वेट का मीन्स आपको रेजिस्टेंस ऐड करना है। आप अच्छा। वेट का ऐड, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अपने आर्म्स को, अभी आपको प्रैक्टिकल करता हूँ कि मैं कहता हूँ अपने आर्म्स को ऐसे कर लीजिए सीधा, ठीक है, इसको रोटेशन कीजिए हल्का स्लो आगे की तरफ, स्लो ऐसे फुल शोल्डर जॉइंट का रोटेटर कफ के मसल्स को पूरा अच्छे से आगे से ये आगे की तरफ ऐसे, ये सुपरेटर प्रोनेटर्स का नहीं है, मैं पूरा रोटेशन ये ऐसे शोल्डर का मसल्स का ये, राइट। 10 काउंट कीजिए, स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो, इफेक्टिवली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 and hold straight hold. Make sure आपका palm down side रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ रहेगा palm. Hold कीजिए, hold दोनों arms को ऐसे hold कीजिए, hold here for 10 seconds. Yes, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 down. Now you can feel. So as अगर आपको feel हो रहा है तो it means कि आप इसकी strength पे काम करें. Weight add तब होगा जब आप लग रहा है कि आप 30 seconds तक अपने arms के weight को ही hold कर पा रहे हो. Firstly, I don't prefer, I am like लोग कहते हैं कि हमको weight lift करना, starting से ही weight lift करना. नहीं, weight lift करने का तब फायदा है जब आपका muscles इतना strength है, आप injury को invite नहीं कर रहे हो. Yeah, absolutely. हमें आपका बहुत अच्छा लगा that हम लोग weights अपने patients को भी talks में weights बोलते हैं, but we don't have the knowledge to tell them कि weights आप सीधा मत जाओ, पहले आप अपनी routine strengthening करो, aerobic exercises करो, isometric करो और अपने ही body arms का weight पहले hold करना सीख लो, फिर आप external weights add करो. Right. बहुत अच्छा. To add more resistance. I Narula want to something like. Yeah, अच्छा, I want. Yeah. Arvind. Yeah. Is it recommended, like जैसे कहते हैं post-menopausal 50+ women and ये सारा, we should not do squats. There are many other exercises apart from squats. नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. मेनोपॉज स्टेज में या मेनोपॉज के बाद स्क्वाट्स का कोई लिंक नहीं है. सारे जो हार्मोन्स, आपका हार्मोनल चेंजेस हो रहा है वो एक एज के हिसाब से होना ही है. इनफैक्ट जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हो दैट आपके अंदर कुछ गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे डोपामाइन, ठीक है, एंड स्टीरोलिन. तो जब भी आप मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली आप एनारोबिक, आई एम नॉट सेइंग एरोबिक, एनारोबिक वर्कआउट करते हो, लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, आप मसल्स को ज्यादा तोड़ रहे हो, तो आपके अंदर एक अच्छा हार्मोन रिलीज होते हैं. सो उसका आपका मेनोपॉज से सिर्फ ये लिंक हो सकता है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसमें बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं है उसका. मतलब स्क्वाट्स आर रिकमेंडेड. बिल्कुल मैम, सारे स्क्वाट्स, सभी वर्कआउट करने, स्क्वाट्स भी करना चाहिए, इनफैक्ट अपर बॉडी का ट्रेन भी करना चाहिए, कोर को भी स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए. क्योंकि जब आप लेग्स को स्ट्रेंथनिंग करते हो तो ये ट्रेनिंग आप अपने कोर को भी सपोर्ट करते हो, कोर को भी स्ट्रेंथ करते हो. बिकॉज आप स्क्वाट्स कर रहे हो विदाउट नॉट यूजिंग अपने कोर को सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, स्क्वाट्स कर ही नहीं पाओगे कोर को सपोर्ट करे बिना. सो जब तक कोर स्ट्रेंथ नहीं होएगा, कोर स्ट्रेंथ है तो आपका लोअर एब्डोमेन स्ट्रेंथ है, लोअर एब्डोमेन से यूट्रस है, और सारा जो भी आपके ऑर्गन्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. Okay. Yes ma'am. Wonderful. Thank you. Thank you so much. If there is no other question, I just wanted to add one thing, that we are joined on this platform by Dr. Vandana Narula. She is the past president of the Inner Wheel Club, and Geeta Jain, the current president, is traveling. So we are very honored to have association of the Indian Menopause Society and the Prerna program with the Inner Wheel Club, who have collaborated with us on this program. So Vandana, would you like to say a few words? Yeah. I want to thank Dr. Nija, Dr. Goody, Dr. Arvind, and our physical trainer Arvind. It was a very informative session, and we are very, very glad to join hands with the Indian Menopause Society. And we would like to do more like further endeavors with them. We would like to join hands for many such programs. And also we would like you all to come over to our Rotary House whenever you have time, and whenever we have some sessions, we would like to invite you all. Yeah. It was very nice joining